Hi student, this side B is Rajpurohit. Welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Student, I hope you are doing studies at your home well. Student, let me tell you something very, important. If you want to become something in your life, you have to do hard work. What you need to do, hard work to do. Whatever hard work has to be done. First, make up your mind. Develop your mind on a very strong level. You have to ignore the people who are, pulling you back. Ignore them, delete them, block the number of the students who, say to you that you can't do. You can't score 90 plus. It's not an easy task. So delete them, block the numbers, block on Facebook, block on WhatsApp, block on Insta, so that you should not see their faces, their voice, and their demotivation. You have to develop a strong mind. A strong mind will able to make a good decision of your life, a hard decision, a stable decision, perfect decision. That decision will change whole life. And a strong mind become by building learning process. So start learning day by day. Start doing your work day by day. Be conscious about your task. What has to be given to you, do sincerely. Learn every day. Enjoy the things. Enjoy the nature. Look to the shining stars. Look to the dusk sun. Look to the dawn sun. And big challenge will come. Don't be afraid. You have to face big challenge. The big challenge make your big mind, and big mind will lead a history in your life. What which will definitely get you success. If you're not willing to learn, you think no one is going to help you. You have to help yourself, and the best process to help yourself is the learning process. So, learning, if it's go very good, no one can stop you to achieve your goal. So, student, this was my few tips for you. So, okay, thank you. Come to the studies. Back today's topic is accounting treatment of revaluation of account and profit and loss adjustment account. Student, if you like my channel, please subscribe and comment on it. Today's topic is journal entry. अब यहाँ क्या होता है बच्चों, जर्नल एंट्री पे यहाँ आप फंस जाते हैं. ठीक है, बच्चे बहुत फंसते हैं, बहुत. जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे लेजर सीखते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सर हमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे. एग्जामिनर जब जर्नल एंट्री का तीर चलाता है तो स्टूडेंट मूर्छित हो जाते हैं और फिर वो सोचने लग जाते हैं यार क्या करें. सो स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाऊंगा इस फंसे हुए जाल से कैसे निकलना है. डबल स्टार वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हमें कैसे निकलना है सीख लो. कैसे निकलेंगे बच्चों. ओके, स्टार्ट करते हैं. अगर कोई एसेट, क्या लिखा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अगर एसेट बढ़ती है और कोई वैल्यू डिक्रीज होती है लाइबिलिटी की, तो हमें प्रॉफिट होता है. इस बात को समझ ले पहले. जैसे एक 10 लाख की मशीन थी, वो 12 लाख की होगी, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 लाख रुपए, बिकॉज एसेट डेबिट बढ़ गया, मशीन 2 लाख. अगर कोई लाइबिलिटी 2 लाख की थी और अब मुझे उसको 1,80,000 ही चुकाने, तो 20,000 मेरी लाइबिलिटी यहाँ लिखूँगा, बिकॉज लाइबिलिटी डेबिट से कम होती है. तो बच्चे समझ में आया. मशीन 2 लाख से बढ़ गई, इससे मैंने डेबिट में लिखा. लाइबिलिटी 20,000 से कम, इसलिए मैंने यहाँ लिखा. तो 2 लाख यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे, दोनों मिला के 2,20,000 डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट. तो यहाँ लिखेंगे 2,20,000 से 2 का मतलब होता है प्रॉफिट. तो मुझे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो चुका है. ओके, फाइन स्टूडेंट, समझ में आया. तो ये क्रेडिट साइज में जाएंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में. तो बच्चों, ये एंट्री क्या क्लैरिफाई करती है कि आपको फ़ायदा हो गया 2 लाख का एसेट्स का, और आपकी लाइबिलिटी 20,000 से कट गई, दोनों फ़ायदा हो गया. दोनों फ़ायदा मिला के रिवैल्यूएशन की रिवैल्यूएशन में आप लिखेंगे 2,20,000, बिकॉज ये प्रॉफिट है. आई होप बच्चों समझ में आ गया. चलते हैं पॉइंट नंबर बी में.
डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू में घटत होती है या कमी होती है या फिर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो आपको लॉस होता है। लॉस होने पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर आपकी मशीन 10 लाख की है और सपोज़ वो 8 लाख की हो गई तो डिक्रीज़ हो गया एसेट्स में, तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपीज़ बिकॉज एसेट क्रेडिट से कम होती है। फाइन बच्चों। अगर मान लो कोई लाइबिलिटी आपकी 50,000 थी, ओके, अब वो आपकी लाइबिलिटी 80,000 होगी, राइट। तो बच्चों लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट से बढ़ती है, तो हम यहाँ लिखेंगे तो लाइबिलिटी क्रेडिट से बढ़ती है, एसेट क्रेडिट से कम होता है, दोनों ही कंडीशन में लॉस है। यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपीज़, यहाँ लिखेंगे 30,000। क्लियर बच्चों। तो 2,30,000 यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, क्रेडिट इक्वल्स डेबिट, यहाँ लिखेंगे 2,30,000, डेबिट मतलब हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट को नुकसान हो गया। तो डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं बिकॉज ये P&L अकाउंट के रूल पे चलता है, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। आई होप बच्चों समझ में आ गया हो आपको। चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर सी की। अगर एसेट हमने बेच दी, बहुत ध्यान सुनिएगा, या किसी पार्टनर ने ले ली, लेकिन कंडीशन क्या है, मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब आपके एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई और ले ली। बहुत बहुत सुपर डबल स्टार इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा बच्चों। एसेट बेच देंगे तो फिर आपका पैसा आएगा कैश, माँ लक्ष्मी डेबिट वर्ड कम्स इन रियल अकाउंट, ओके। और एसेट जब घर से चली जाएगी बिकॉज बेच दी जाएगी तो क्रेडिट से जा रही है, डेबिट से डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज अकाउंट रियल अकाउंट टू एसेट। क्या बच्चों बात समझ में आ रही मेरी, ओके। अगर हम बात करते हैं एसेट हमने किसी पार्टनर ने ले ली, अब बात आती है अगर हमने बेच दी या किसी पार्टनर ले ली, दो कंडीशन हो सकती है और दोनों में कह रहा है बुक वैल्यू से ज़्यादा। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एसेट थी 10 लाख रुपए की, हमने बेच दी 12 में, चाहे वो बेची चाहे वो टेकन, दोनों में से एक केस होगा। आइए चलते हैं, अगर हमने बेची, ध्यान सुनिएगा, तो हम लिखेंगे 12 लाख रुपए हमारे पास आ गए कैश, 10 लाख की एसेट चलेगी और 2 लाख हमारे रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हो गया। क्या बात समझ में आई बच्चों, बहुत ही सिंपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टेकन में। टेकन में क्या होता है, अगर पार्टनर एसेट लेता है, पार्टनर कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, ओके, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी डेबिट से कम होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे तो हम पार्टनर कैपिटल जो है वो हम लोग डेबिट में लिखेंगे और इससे हमारी कैपिटल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। फाइन स्टूडेंट्स, रिड्यूस हो गई और हमारे यहाँ से एसेट चलेगी। पार्टनर कितने रुपए की लेगा, पार्टनर कैपिटल कितने रुपये रिड्यूस होगी, 12 लाख रुपीज़ की, राइट। और एसेट कितने की थी, 10 लाख, तो फ़ायदा कितने का हो गया, 2 लाख रुपए। आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगर एसेट पार्टनर ले लेते हैं और कम वैल्यू में लेते हैं, लेट्स सी, अगर एसेट्स की वैल्यू कितनी है 10 लाख और हमने बेची कितनी 8 लाख में, या पार्टनर ले ली 8 लाख में, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने बेच दी तो भी आपके 8 लाख आएंगे, अगर पार्टनर ले ली तो भी उसने 8 लाख मिली, पहली बात, ओके। एसेट घर से कितनी गई 10 लाख की, तो फिर डिफरेंस कितना बच गया 2 लाख। तो स्टूडेंट 10 लाख की चीज़ गई, वो 8 लाख में गई, तो 2 लाख का लॉस, ये लॉस कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन में। समझ में आ गया होगा बराबर। इससे क्या हुआ, एसेट्स गई तो क्रेडिट वर्ड गोज अकाउंट, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन। अगर पार्टनर ले ली तो कैपिटल क्या हुई, रिड्यूस होगी, बात समझ में आ रही है, और 2 लाख का हमें प्रॉफिट हो गया, इसलिए अब 2 लाख का सॉरी हमें लॉस हो गया, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। 10 लाख की एसेट गई तो 8 लाख में, तो 2 लाख का लॉस। आई होप स्टूडेंट सब बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। रिवोल्यूशन की हमने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है बच्चों, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवोल्यूशन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं करेगा। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ रिवोल्यूशन के अकाउंट्स की मैं आपको खुद एग्जाम्पल रूपी करके दिखाऊंगा, फिर हम पार्टनर कैपिटल के 3 एडजस्टमेंट करेंगे और उसी के साथ फिर हमारा ये एडमिशन और पार्टनर खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए थैंक यू। हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आई होप यू एंजॉय एट योर होम। पढ़ते रहिए बच्चों, अगर आपको मंजिल आपको पानी है, सो कीप लर्निंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड and to get a strong decision and to achieve your destination. Thank you very much. Bye bye बच्चों, bye.